یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیرآبر یا شبیر یا شبر اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ جماعت اہل سنت سے تعلق رکھنے والے مقتدر محترم مستند معزز محتشم بشان علماء کرام، بالخصوص نقیب ہرد العزیز، نقیب ہندوستان، ناظم اجلاس، منبع اخلاص حضرت قاری عمران برکاتی صاحب قبلہ، شاعر ملک ہندوستان، اندلیب گلشن رسالت محترم سعید اختر صاحب قبلہ، جملہ ارباب منبر، معزز سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ عشق رسول میں تلاطم خیز ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے نبی سے محبت کرنے کے طفیل اس وسیع و عریض میدان میں اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے لوگ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، پروردگار عالم تمام لوگوں کی زندگیوں کو سجا دے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام علی حبیبہ سراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ یوم القیامۃ کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، نوشہ بزم جنت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی سچی محبت آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اتنی ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب میں یہاں سے مظفر شاہ بارسی کے لکھی ہوئی نعت کے 2-3 اشعار پڑھ کے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میری بازوؤں کا تعویذ، میری محبت، میں جن کی محبتوں کو اپنے گلے میں تعویذ کی طرح پہنتا ہوں، نقیب البراہید حضرت نقیب اہل سنت محترم قاری عمران برکاتی صاحب قبلہ کی توجہ کو شامل حال رکھتے ہوئے مطلع آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ سرکار سنتے ہیں تو آپ حضرات اپنی آواز مدینہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔
سرے آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئی جشن شب برات جشن دستار بندی بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اسی ضمن میں شعر مظفر شاہ بارسی نے لکھا ہے ملاحظہ فرمائیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر میں صدقے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مکتے میں کیا کہتے ہیں مظفر شاہ بارسی ملاحظہ فرمائیں یہ وہی مظفر شاہ بارسی ہیں جنہوں نے ایک مقام پہ کہا تھا ایمان کا ظہور تمنائے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ اپنی تجوریاں میں مظفر بھری ہوئی مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ مکہ ملاحظہ کرنے ذرا دل لگا کے اپنے ہونے کا احساس دلا دیں بلند آواز سے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب میرا ایمان ہے میرے بھی وہ اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے میرے بھی وہ اشعار
यार सुनते हैं। पढ़ ले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना करीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस्म वो जीशान गया। माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, लेकिन जैसा तकरीर में बजता है आप वैसा बजा दीजिएगा। थोड़े कौलमों की आवाज़ वापस कर दीजिए ताकि हमें लगे कि हम आपके साउंड सिस्टम पर ही बोल रहे हैं। ज़रा मोहब्बतों के साथ एक मरतबे और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और आला हजरत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब यहाँ से सैदपुर के गयूर मुसलमानों, मैं आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। आप सब जानते हो कि मेरा रब खालिक कायनात है और उसके बेशुमार नाम है। कहीं पे बंदा अपने रब को रहमान कह के पुकारता है, कहीं पे बंदा अपने रब को रहीम कह के पुकारता है, कहीं पे बंदा अपने रब को सत्तार और गफ्फार कह के पुकारता है, कहीं पे बंदा अपने रब को गफूर और रहीम कह के पुकारता है, कहीं पे बंदा अपने रब को अला कुल्ले शैन कदीर कह के पुकारता है। बेशुमार मेरे रब के नाम है, लेकिन जहां बेशुमार मेरे रब के नाम है, उन तमाम नामों में अगर परवरदिगार आलम को अपना सबसे पसंदीदा नाम है तो वो सुनते चले जाइएगा साहिबो। मेरे रब को अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा जो नाम है वो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगार आलम की रहमत को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, और रहमत खुदाबंदी जब अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है तो बंदों की किस्मत का सितारा और जो कुशरैया पे चमकता हुआ नजर आता है। आप सब जानते हो मेरे रब ने बेशुमार शहरों और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर शहर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने तकरीबन 104 किताबों और सहीफों को नाज़िल फरमाया है, लेकिन तमाम किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई कबीला बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई गैंग बनाई है तो वो जमात कोई और नहीं है बल्कि रसूलों की जमात को बनाया है। और रसूलों की जमात को बनाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरे परवरदिगार आलम ने किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के दस्ते जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब नाम हुआ मुस्तफा। तुम पे करोड़ों गुरु काबे के बद्र तुझा, तुम पे करोड़ों गुरु तैबा के शमसु तुहा, तुम पे करोड़ों गुरु सैदपुर के अंदर रहने वालों। अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक पैगाम मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक स्टेटस मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक तहरीर मिल जाती है, अब यहाँ से हमें एक खत मिल जाता है। पता चल गया मुसलमानों मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरे पर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजर हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे
कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा सिंगल चेचिस है और इतना बड़ा दावा कर रहे हो, तुम्हारे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो समर रज़वी आपके सवाल का जवाब चंद मिनट में देता हुआ नजर आएगा। आप पूरी दुनिया का मुहासबा कीजिएगा, आप पूरी दुनिया का मुताला कीजिएगा, पूरी दुनिया का सर्वे कीजिएगा और पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने लाइएगा कि जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अगर आप अमेरिका के ट्रम्प को मेरे सामने लाएंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम को मेरे सामने लाइएगा तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप सब अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग आपकी जमीन पर रहते हैं तो आपसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी रहते हैं। हजरत कारी इमरान साहब किबला और शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर साहिब किबला, आप अपने आप को ले लीजिएगा, जहां इस जमीन पे आपको फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे वहीं पे आपको इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो मुझसे अदावत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज जब पूरी दुनिया के अंदर किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने लाइएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो। अरे हाथ तो ये है कि जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारे जिससे प्यार करते हो, पहाड़ जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करता हो, खुशकोतर जिससे प्यार करता हो, बहिरोबर जिससे प्यार करता हो, जिन्न बशर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, अर्श कुर्सी जिससे प्यार करते हो। अगर पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई जात मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है बल्कि वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लख्त जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? समर रज़वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहब, आला हजरत अजीमुल बरकत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे आका 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। क्या खबर कितने दावे खेले थे? नदू का हमारा नबी, गर्व बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली नबी, रमजा थोड़ा सा मुस्ताकी जैसे है लेकिन का सहारा हमारा नबी। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। पैटर्न की तरफ आ रहा हूं, अब मैं अपने स्टेट की तरफ आ रहा हूं, अपने स्टेटस की तरफ आ रहा हूं। सुनते चले जाइएगा सैदपुर के गजूर मुसलमानों, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये लफ्ज़ जो अजीम है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पढ़ी लिखी जमात यहाँ पर बैठी हुई है, मेरे सीनियर दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं तो इनके कदमों के ज़र्रात को अपने सर का ताज बनाता हूँ और यहाँ इनसे सीख करके आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। ये लफ्ज़ अजीम जो है ये किसी जब ऊंची जगह को हम देखते हैं तो अजीम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी बुलंद चीज़ को देखते हैं तो लफ्ज़ अजीम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे रब ने जब अपने महबूब के अखलाक की बात आई तो अखलाक को अजीम क्यों कहा है? आप तवज्जो इधर रखिएगा, अगर आपकी तवज्जो इधर से हट जाएगी तो मेरी बात आप तक साफ से पहुँच नहीं पाएगी और जब आपके सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप फिर जवाब नहीं दे सकते हो। सैदपुर के गजूर मुसलमानों, मैं आज के सामने अपना कलेजा रख के रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने गुलाम रब्बानी की तिलावत की है, मेरा रब इरशाद फरमाता है हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये अखलाक क्या है? ये अखलाक लफ्ज़ खुल्क की जमा है। एक अखलाक होता है और दूसरा हुस्न सुलूक होता है। हुस्न सुलूक वो है जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारा बच्चा अगर 10 साल का होता है, आप अपने
बच्चे की जेब को छान के देखिएगा, अपनी बच्चे की जेब में हाथ डाल के देखिएगा, तो उसकी जेब में पैसा मिले ना मिले, उसकी जेब में कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन उसकी जेब में मोबाइल जरूर मिल जाएगा। और जब वो मोबाइल मिलेगा तो जब हमारा बच्चा मोबाइल चलाता होगा तो उसके अंदर किसी कंपनी का सिम भी यूज करता होगा, या वो जियो 4G का सिम इस्तेमाल करता हो, या वो फिर आइडिया या BI किसी भी कंपनी का सिम इस्तेमाल करता हो। लेकिन जब हम कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मोबाइल पे कंपनी का फोन भी आता है। जब कंपनी से हमारे पास फोन आता है तो आज बच्चा हमारा बहुत होशियार हो चुका है, बच्चा हमारा बहुत चालाक हो चुका है। जब कंपनी के नंबर को देखता है तो कॉल को रिसीव नहीं करता है, कट कर देता है। उसको पता है कि ये कंपनी का नंबर है, लेकिन एक मर्तबे फोन आता है बच्चा कट कर देता है, दो मर्तबे फोन आता है बच्चा कट कर देता है, जब तीसरी मर्तबे फिर फोन आता है तो बच्चा परेशान होकर रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद में अपने कान पे लगाता है। जैसे ही कान पे लगाता है तो उधर से कंपनी से आवाज आती है। बच्चा 10 साल का है, लेकिन कंपनी का जो बात करने वाला कंप्यूटर पे जो बैठा हुआ है, जो कंपनी का ओनर है, अगर वो बात कर रहा है तो वो हमारे 10 साल के बच्चे से भी कह रहा है, सर मैं आपको एक प्लान देना चाहता हूँ, सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लेकिन हमारा बच्चा उसकी बात तो नहीं सुनता है, बल्कि उसका इस्तेमाल, उसका स्वागत गालियों से देता हुआ नजर आता है, गालियों से उसके जवाब का बदला देता हुआ नजर आता है। लेकिन आपने इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगाया होगा हमारे बच्चे की जो गालियों को वो बर्दाश्त क्यों करता है। हमारा बच्चा गाली देता है और वो बच्चे से सर कहता है और कहता है सॉरी माफ कीजिएगा मैं तो आपको प्लान दे रहा था। ये वो क्यों कहता है? इसलिए कि उसका इसमें मतलब शामिल होता है। आपका बच्चा उसका कस्टमर है, अगर वो आपके बच्चे से नाराज हो जाएगा तो आपका बच्चा उसकी सिम को निकाल के फेंक देगा, और जब सिम को निकाल के फेंक दिया जाएगा तो उसको कमाई नहीं हो पाएगी। ये हुस्न सुलूक है। मतलब होता है तो मोहब्बत से बात की जाती है, ये हुस्न सुलूक है। अगर मतलब है तो प्यार से बात की। अगर हमारा मतलब हजरत कारी इमरान साहब से है तो हम इनसे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, सीने से सीना मिला के बात कर रहे हैं, हाथों में मुसाफा करके बात कर रहे हैं। और मतलब नहीं है तो हम हजरत कारी इमरान बरकाती को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। ये हुस्न सुलूक है। जो मतलब होता है तो मोहब्बत से बात की जाती है। एक मिसाल 30 सेकंड की और सुन लीजिएगा, उसके बाद में बात जो करूंगा वो समझ में आएगी। आपने कभी हवाई जहाज का सफर किया होगा, हजरत कारी इमरान बरकाती ने फ्लाइट का सफर किया है। अगर फ्लाइट के अंदर हमें प्यास लगती है तो हमारा कहने की देर होती है कि पानी की बोतल हमारे सामने आ जाती है और मैडम आके कहती है सर अगर 1-2 सेकंड हम लेट हो गए हो तो माफ कीजिएगा, हम आपसे माफी चाहते हैं। ये तो क्यों कह रही है? इसमें उसका मतलब शामिल है। जो हजरत कारी इमरान बरकाती ने फ्लाइट में बैठने का टिकट जो खरीदा है उसमें पानी पीने तक का बिल पे कर दिया है, उसमें पानी पीने तक का चार्ज भर दिया है। इसलिए वो आपसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं। जहाज के अंदर काम करने वाले कारकुनान हमसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं। ये हुस्न सुलूक है। जब मोहब्बत होती है, जब काम होता है तो मोहब्बत से बात की जाती है। लेकिन आइए, हुस्न अखलाक किसके पास था? हुस्न अखलाक किसी दुनियादार के पास नहीं, बल्कि मेरे और आपके आका के पास था, मदीने के ताजदार के पास था। अगर मेरे मुस्तफा से किसी का मतलब होता था तब भी मुस्तफा मुस्कुरा के बात करते थे, अगर मतलब नहीं होता था तब भी मुस्तफा मुस्कुरा के बात करते थे। अब मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मैंने मुस्तफा की रफ्तार को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा की गुफ्तार को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा के चलने को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा के बोलने को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा के खाने और पीने को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा के उठने और बैठने को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा के सोने और जागने को नहीं देखा। ऐ कुरान जरा ये तो बताते मेरे मुस्तफा के कदम कैसे थे? तो कुरान जवाब देता है, अरे नादान तो मुस्तफा के कदमों की शान सुनना चाहता है। मेरा रब कुरान में कदमों के हवाले से इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद। मैंने फिर से सवाल किया, ऐ परवरदिगार मेरे मुस्तफा के हाथ कैसे थे? तो मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मुस्तफा की आंखें कैसी थी? तो कुरान जवाब देता है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मुस्तफा की जुबान कैसी थी? तो कुरान जवाब देता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था? तो कुरान जवाब देता है, अलम नशरह लक सदरक व वदाना अनका बिज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा व इला रब्बिका फरग़ब। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की औलाद की कसरत कैसी थी? तो मेरा रब कलाम रब्बानी के 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मैंने कुरान से पढ़ के सवाल किया है, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी? तो कुरान जवाब देता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की
सीरत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की रिसालत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। मैंने कुरान से सवाल किया, अरे कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की बारगाह का पावर कैसा था, मेरे मुस्तफा का इख्तियार कैसा था, मेरे मुस्तफा का पावर कैसा था, तो कुरान जवाब देता है माताकुम रसूल फहुजू फमानहकुम हुकुमतहु। मैंने कुरान से पलट के सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की सीरत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है फलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से पलट के सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, अरे कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के आदाब क्या क्या थे, मेरे मुस्तफा के अलकाब क्या क्या थे, तो कुरान कहीं पे मुस्तफा को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं पे मुस्तफा को या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे ताहा और यासीन कह रहा है। मैंने कुरान से बर्जस्ता सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का नाम क्या था, तो कुरान जवाब देता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान से सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के कदमों से लेकर पेशानी तक का पूरा मुजस्समा कैसा था, तो मेरा रब 30वें पारे में मुस्तफा के पूरे चेहरे के और पूरे जिस्मानी ताकत के हवाले से कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका फमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअ्तिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फअदा फवजदका ज़ालिमन फहदा फवजदका आइलन फअगना फअम्मा यतीमा फला तक़हर वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान तूने मुस्तफा के पैरों से लेके मुस्तफा के सर तक का जिक्र किया, मुस्तफा के सीने तक का जिक्र किया, लेकिन तूने सीने का जिक्र किया, सीने को अजीम नहीं कहा। तूने कदमों का जिक्र किया, लेकिन तूने कदमों को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा के हाथों को जिक्र किया, लेकिन हाथों को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा की जुबान का जिक्र किया, लेकिन तूने जुबान को अजीम नहीं कहा। अरे कुरान तूने मुस्तफा की आंखों का जिक्र किया, लेकिन तूने आंखों को अजीम नहीं कहा। अरे कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का अजीम वस्फ कौन सा है, मेरे मुस्तफा की अजीम शय कौन सी है, मेरे मुस्तफा की अजीम चीज कौन सी है। जब मैंने अजीम वस्फ को कुरान से मालूम किया, तो कुरान पलट के जवाब देता है नादान सुन ले, तू मुस्तफा के अजीम वस्फ को सुनना चाहता है, तो कुरान जवाब देता है फइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हदीस तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के इमाम की नजर मेरे मुस्तफा के अखलाक पे पड़ती है, तो बरेली की टूटी हुई चटाई से मेरे रज़ा फरमाते हैं तेरी खुल्क को हमने अजीम किया, तेरी खल्क को कोई तुझे हुआ है ना हो क्या चाहा तेरे कान के हुस्न अदा की कसम। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने शबे बरात, जश्ने दस्तार बंदी। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, समर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुस्तफा के अखलाक के हवाले से महरारा मुकद्दसा से हुजूर नज़मी मियाँ कहते थे आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफ़ा। उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हजरत अखलाक के ताल्लुक से कहते हैं ऐ रजा खुद साहिब कुरान मताही हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर में दहत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आप आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, वो सब बाद में हो, लेकिन पहले आप इंसान हो। और इंसान होने के बावजूद भी सबसे पहले जो चीज आपके अंदर होना चाहिए वो अखलाक है। अगर अखलाक नहीं है तो आप कुछ भी हो मेरी नजर में बेकार है। और मेरी ही नजर में नहीं बल्कि जितने समझदार थी शऊर बाअदब बाअखलाक लोगों से आप मिलेंगे तो तमाम लोग यही कहेंगे अगर आप कुछ भी हो, डिग्री कोई भी आपके पास में है वो सब बाद में है, पहले आपके पास में अखलाक होना चाहिए। अगर अखलाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अरे ये अखलाक ही की तो वजह है। अरे मेरे मुस्तफा तो मक्के की सरजमीन पे पैदा हुए थे, लेकिन इस्लाम भारत के अंदर 7 समंदर पार करके कैसे आ गया? इस्लाम तो आया था मक्के के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा क्यों लहर रहा
रहा है, ये वजह कोई और नहीं है। इस्लाम किसी तलवार और तीर से नहीं फैला है, इस्लाम किसी बर्ची और भाले से नहीं फैला है, इस्लाम किसी गोली और बारूद से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम अगर फैला है तो मुस्तफा के अखलाक से फैला है। अगर मुस्तफा से कोई एक मर्तबे बात कर लेता था तो मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाया करता था, मुस्तफा के कदमों पर गिरता हुआ नजर आता था। अब आइए मैं साधारण गुफ्तगू आपके सामने रखने लगा हूँ, एक बात मैं आपके सामने एक रिवायत पेश करने लगा हूँ, अगर आपका दिल लगे तो सुनते चले जाइएगा, लेकिन उससे पेशतर बुलंद आवाज से सिग्नल के तौर पर मुझे बता दे कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है। हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीने की मुकद्दस ज़मीन है और मदीने की मुकद्दस जमीन पे वही मदीना जिस मदीने के अंदर मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारे हैं। मदीने के अंदर एक बेवा औरत रहा करती थी और वो एक यहूदी की बीवी थी। उसके शौहर का इंतकाल तकरीबन 7 साल पहले हो चुका था, लेकिन जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ था तो अपनी बीवी की गोद में एक नन्ही सी अमानत छोड़ के मरा था। जब वो गया था तो एक नन्ही सी अमानत छोड़ के मरा था, वो अमानत एक बेटी की शक्ल में थी। जब बेटी की उम्र 7 साल की हो जाती है और उसके बाप का इंतकाल हुए जब 7 साल हो जाते हैं, जब 7 बरस हो जाते हैं तो 7 साल की बच्ची तो बोलने लगती है, 7 साल की बच्ची तो पानी भी मांग लेती है, 7 साल की बच्ची तो खाना भी तलब कर लेती है। एक दिन रात का सन्नाटा है, मदीने के तमाम लोग सो रहे हैं, मदीने के तमाम बच्चे सो रहे हैं। वो नन्ही सी 7 साल की बच्ची मुस्तफा के दौर की वो यहूदी की बेटी कहती है अपनी माँ से, ऐ मेरी माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जब उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ से सवाल किया था तो माँ ने कहा था, मेरे लाल तेरी उम्र तो बहुत छोटी सी है, तू तो 7 बरस की है, तू मुझसे कौन सा सवाल करना चाहती है? तेरी उम्र तो 7 साल की है, तू मुझसे कौन सा सवाल करना चाहती है? तो उस बेटी ने कहा था, ऐ मेरी माँ मैं तुझसे ये सवाल करना चाहती हूँ, मेरे बाप को इंतकाल किए हुए 7 साल हो गए, मेरे बाप को इंतकाल किए हुए 7 बरस हो गए, लेकिन मैंने 3 दिन से ये देखा है कि 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मुझे खाने के लिए खाना नहीं मिला है। ऐ मेरी माँ मुझे जरा ये बता दे, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो क्या मदीने में उसको खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता है? ऐ मेरी माँ जरा ये तो बता दे, अगर किसी के बाप का साया उसके सर से उठ जाता है तो क्या मदीने में उस बच्ची को कोई अपने कलेजे से नहीं लगाता है? ऐ मेरी माँ मैं 7 साल से देखती हूँ, जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ है तेरे सर पे मैंने कभी दुपट्टा नहीं देखा है। ऐ मेरी माँ जरा ये तो बता दे कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो मदीने के अंदर क्या उसकी बीवी को ओढ़ने के लिए दुपट्टा भी नहीं दिया जाता है? जब एक नन्ही सी बच्ची ने इतना कहा होगा, सैदपुर के गजूर मुसलमानों आप सब जानते हो 7 साल के बच्चे की हाइट कितनी होती है, 7 साल के बच्चे का वजूद कितना होता है, 7 साल के बच्चे का वजन कितना होता है। जब उस 7 साल की बच्ची ने अपनी माँ से सवाल किया होगा तो माँ का दिल कैसा है, माँ का दिल कैसा लर्जा होगा, तड़का होगा, ये अंदाजा वो लोग लगा सकते हैं जो साहिब औलाद है, जिनके बच्चे हैं। जब छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सवाल कर दे तो माँ का कलेजा तो फटने लगेगा, माँ की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह बहने लगे, माँ की आंख से आंसू टप टप जमीन पे गिरने लगे। अपने लाल को कलेजे से लगाती है यहूदी की बीवी और कहती है, मेरी बेटी तूने ये कौन सा मुझसे सवाल कर दिया? अरे तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, इतना बड़ा सवाल कैसे कर दिया तूने? तो बच्ची कहती है, मेरी माँ मुझे 3 दिन हो गए मुझे खाने के लिए खाना नहीं मिला है, मुझे 3 दिन हो गए पीने के लिए पानी नहीं मिला है। जब इतना कहा था बच्ची ने तो माँ अपने लाल को कलेजे से लगा के लोरियां दे के सुना देती है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, जैसे कि सुबह का सूरज में उदार होता है, चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है। अब बच्ची अपनी माँ से कोई बात नहीं करती है, बल्कि अपने घर से एक मिट्टी का बर्तन उठाती है, मिट्टी का एक प्याला उठाती है और उठाने के बाद में मदीने की गलियों में निकल जाती है। एक दरवाजे पर जाके दस्तक देती है, वहां से खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। दूसरे दरवाजे पे दस्तक देती है, वहां से भी खाने के लिए खाना नहीं मिला। तीसरे दरवाजे पे दस्तक दिया है, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला। मुसलसल 1 दिन नहीं बल्कि 3 दिन हो गए बच्ची को मदीने के अंदर घूमते हुए, लेकिन किसी के घर से कोई खाना खाने के लिए किसी ने नहीं दिया। अब जब 3 दिन हो गए बच्ची को परेशान होके तो फिर से जाके अपने माँ के दामन को पकड़ लेती है रात के सन्नाटे में, कहती है, मेरी माँ मुझे 3 दिन हो गए तुमने मुझे खाने के लिए खाना अता नहीं किया गया। जरा ये तो बता
दे कि मदीने के अंदर कोई इतना बड़ा सखी नहीं है जो मुझे खाना दे दे। ऐ मेरी माँ, अब मेरा दिल नहीं चाहता है इस जमीन पर रहने को, अब मेरा दिल नहीं चाहता है जिंदगी गुजारने को, अब तो मेरा दिल चाहता है मैं अपने गले से मौत लगा दूं और खुदकुशी करके मर जाऊं। जब एक बच्ची ने अपनी माँ से इतना कहा होगा तो माँ कितना अपनी बच्ची से, बेटी से, अपनी औलाद से प्यार करती है प्यारे। जब बच्ची ने इतना कहा था तो माँ के आंसू अब आंखों से टप टप जमीन पे गिरने लगे और माँ ने कहा था मेरा लाल, तू 3 दिन अपनी मर्जी से मदीने के अंदर तूने भीख मांगी है, सुबह को मैं तुझे एक दरवाजे का पता मैं बताऊंगी, उस दरवाजे पे चली जाना, तुझे खाना भी मिलेगा और उस दरवाजे से कभी जो भी जाता है मायूस होकर नहीं लौटता है। बच्ची कहती है मेरी माँ, मैंने 3 दिन हो गए कोई दरवाजा छोड़ा ही कहाँ है जो जिस दरवाजे पे जाके दस्तक नहीं दे दी है। अब कौन सा ऐसा दरवाजा है जो जिस दरवाजे से मुझे खाने के लिए खाना अता कर दिया जाएगा। माँ कहती है मेरे लाल, अभी एक दरवाजा ऐसा बचा है जहाँ तू नहीं पहुंची है। बेटी कहती है मेरी माँ वो कौन सा दरवाजा है? तो माँ कहती है वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है। वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मुसलमानों के मसीहा का दरवाजा है। वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि आमना के लाल का दरवाजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा है। जब माँ ने इतना कहा था बेटी से तो बेटी कहती है मेरी माँ, अरे तू उस मोहम्मद की बात कर रही है जिस मोहम्मद को गाली देते देते मेरा बाप दुनिया से चला गया। अरे तू उस मोहम्मद की बात कर रही है जिस मोहम्मद को मेरा ताऊ और चचा गाली दिया करते हैं। अरे तू उस मोहम्मद की बात कर रही है जिसको मेरा पूरा कबीला गाली देता है, वो मुझे खाना कैसे अता कर देगा? तो वो माँ कहती है मेरे लाल, अरे तूने अपने बाप को गाली देते हुए देखा होगा, तूने अपने चचा और ताऊ को गाली देते हुए मोहम्मद को देखा होगा, लेकिन मोहम्मद ने बदले में अगर किसी को गाली दी हो तो बोल, अगर मोहम्मद ने किसी को बदले में गाली दी हो तो बोल। अरे मोहम्मद की शान तो ये है, अगर लोग गाली देते हैं तो मुस्तफा दुआएं देते हुए नजर आते हैं, अगर लोग मुस्तफा के बदन पे पत्थर मारते हैं तो मुस्तफा उनके लिए दुआ करते हुए नजर आते हैं, अगर मुस्तफा के रास्ते में लोग कांटे बिछाते हैं तो मुस्तफा उनके लिए दुआएं करते हैं, मुस्तफा के ऊपर अगर कोई ऊंट की ओझड़ियां डाल दिया करते हैं तब भी मुस्तफा उनके लिए दुआएं दिया करते हैं। माँ कहती है मेरे लाल, तूने मोहम्मद को कभी किसी को गाली देते हुए देखा हो तो बोल। तो बच्ची कहती है मेरी माँ ये तो सच है, मैंने कभी किसी को बद्दुआ देते हुए नहीं देखा है। ऐ मेरी माँ, मगर वो मुझे खाना कैसे अता करेंगे, मैं कौन सा मुंह लेके उसके दरवाजे पे जाऊं? तो माँ ने कहा था बेटी तू एक मर्तबे जाके तो देख ले, तुझे मुस्तफा का पावर पता चल जाएगा, तुझे मुस्तफा का अखलाक आदतें करीमाना पता चल जाएगी, जो उनकी नेचुरल हैबिट्स है वो तुझे पता चल जाएगी। माँ की बात की बेटी ने मान ली और जैसे ही सुबह का सूरज निकला अपनी माँ के हुक्म को पगडंडियों पे चलते हुए, अपनी माँ की बात को मानते हुए मिट्टी के बर्तन को उठा के मुस्तफा के दरवाजे पे पहुंच जाती है। जैसे कि मुस्तफा के दरवाजे पे बच्ची पहुंची है, जाके दस्तक दी है, अंदर से कोई और नहीं मेरा और आपका पैगंबर तशरीफ ले आता है, मेरा और आपका नबी तशरीफ ले आता है। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए तो देखते हैं कि कोई छोटी सी बच्ची मिट्टी का बर्तन लेके दरवाजे पे खड़ी हुई है। जब मुस्तफा ने देखा तो बेटी से कहते हैं बेटी बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई है? तो बच्ची कहती है मोहम्मद मैं आई नहीं हूँ बल्कि भेजी गई हूँ। मुस्तफा कहते हैं किसने भेजा है? बेटी कहती है मेरी माँ ने तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। मैं मुसलमान की बेटी नहीं यहूदी की बेटी हूँ। मेरे मुस्तफा ने कहा था मैंने तुझसे ये नहीं पूछा है कि तू मेरी है या पराई है, मैंने तुझसे ये नहीं पूछा है बेटी तू अपनी है या बेगानी है, बल्कि बेटी अगर तू पराई है फिर भी तू बेटी है, अगर बेटी किसी गैर की भी हो तब भी वो बेटी होती है, बेटी अगर अपनी हो तब भी वो बेटी होती है। कहाँ है आज वक्त की मीडिया, कहाँ है आज की सोशल मीडिया, कहाँ है आज की प्रिंट मीडिया, कहाँ है आज के अखबार छापने वाले जो ये कहते हैं कि मुस्तफा ने बेटियों से प्यार नहीं किया है, जो ये कहते हैं कि मुस्तफा के दरवाजे से कुछ नहीं मिलता है। अब मुस्तफा अपने दरवाजे के अंदर जाते हैं, अपने घर के अंदर जाकर के अपने उस दस्तरखान से खाना उठाते हैं जिस दस्तरखान पे हसन हुसैन खाना खाया करते थे, जिस दस्तरखान से फातिमा अली खाना खाया करते थे। मेरे मुस्तफा अपने दस्तरखान से तमाम खाने को जमा करते हैं और जमा करने के बाद में बेटी के कशकोल में खाना रख देते हैं, बेटी के प्याले में खाना रख देते हैं और रखने के बाद में कहते हैं मेरी बेटी तू यहाँ से खाना ले जा और तू खुद भी खा लेना, अपनी माँ को भी खिला लेना। और बेटी से कहते हैं बेटी सुन ले, अगर तुझे जब भी भूख लगे तो किसी और दरवाजे पे मत जाना बल्कि मेरे ही दरवाजे पे आ जाना। अगर कयामत तक तुझे भूख लगती रहेगी तो मुस्तफा तुझे खाना
रहमत अता करता रहेगा। तभी तो हामिद लखनवी ने कहा था, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्लाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने शबे बारात, हजरत अल्लामा समर रज़वी साहब क़िबला, सरजमीने सैदपुर हाकिंस बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद नहीं खाते हैं, गैरों को खिलाते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। और आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुनते चले जाइएगा, जब मुस्तफा ने खाना दिया उसके बाद कहा, बेटी अगर तुझे कयामत तक भूख लगे तो कहीं और मत जाना, मेरे दरवाजे पे आ जाना। अब बेटी ने मुस्कुरा के खाना ले लिया और लेने के बाद में कहा, मोहम्मद अगर हो सके तो मुझे एक चादर और अता कर दीजिए। बेटी ने जब इतना कहा तो मेरे आका करीम आका कहते हैं, बेटी चादर किस लिए चाहिए है? तो बच्ची से मुस्तफा ने जब इतना कहा तो बेटी कहती है, ए मोहम्मद मेरे बाप को इंतकाल किए हुए 7 साल हो गए, लेकिन मैंने अपनी माँ के सर पे कभी दुपट्टा नहीं देखा है। अगर आपके पास में कोई चादर का टुकड़ा हो तो मुझे अता कर दीजिए। जब बेटी ने इतना कहा था तो मेरे मुस्तफा दोबारा घर के अंदर दौड़ के गए और कोई ऐसी वैसी चादर नहीं उठाते हैं, बल्कि अपनी मुजम्मिल वाली चादर उठाते हैं, अपनी चादर तथीर उठाते हैं, अपनी कमली वाली चादर उठा करके तय करके बच्ची के हाथ में रख देते हैं। ये कौन सी चादर है? ये वही चादर है। एक मर्तबे हजरत आयशा अपने घर के अंदर मौजूद है और मेरे आका घर के बाहर गए हुए हैं। हजरत आयशा ने अपना दुपट्टा धो दिया और दुपट्टा धुलने के बाद सूखने डाल दिया, लेकिन हजरत आयशा ने मुस्तफा की चादर तथीर को अपने सर पे ओढ़ लिया। जब सर को ओढ़ा है, जब सर को मुस्तफा की चादर से छिपाया है, तो आयशा अगर जिधर देखती है बारिश होती हुई नजर आ रही है, अगर पूरब की तरफ देखती है तो बारिश नजर आ रही है, अगर पश्चिम की तरफ देखती है तो हजरत आयशा को बारिश नजर आ रही है। इसी कश्मकश में मुस्तफा तशरीफ ले आए और मुस्तफा जब बाहर से अंदर आए तो हजरत आयशा कहती है, मुस्तफा मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। अरे आका जरा ये तो बताइए, आप तो घर के बाहर से आ रहे हो, आपका अमामा सूखा हुआ क्यों है, भीगा हुआ क्यों नहीं है? आपका बदन सूखा हुआ क्यों है, भीगा हुआ क्यों नहीं है? मुस्तफा कहते हैं, क्यों भीगता? तो आयशा कहती है, मुझे तो चारों तरफ बारिश नजर आ रही है और आपके बदन पे बारिश नहीं हुई है, बात क्या है? तो मुस्तफा हंसने लगते हैं, मुस्तफा मुस्कुराने लगते हैं, मुस्तफा के होठों पे तबस्सुम खेलने लगती है। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, आयशा कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, बल्कि हमारी चादर जो तुमने ओढ़ी है इसको उतारो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जैसे ही चादर को उतारा गया तो कहीं पे बारिश नहीं हो रही थी। हजरत आयशा कहती है, मुस्तफा बात समझ में नहीं आई। मेरे आका फरमाते हैं, तुमने हमारी मुजम्मिल वाली चादर ओढ़ ली थी, इसलिए बारान रहमत का नुज़ूल नजर आ रहा था, इसलिए रहमत की बारिश का नुज़ूल नजर आ रहा था। ये वही चादर है रहमत वाली। मुस्तफा जाने रहमत अपनी चादर को बच्ची के हाथ में फोल्ड करके रख देते हैं और कहते हैं, जाओ बेटी इसको अपनी माँ के सर पे उड़ा देना। अब बेटी आई थी रोती हुई लेकिन हंसती हुई जा रही है, बेटी आई थी गमगीन होती हुई लेकिन मसरत और सादमानी में झूमती हुई जा रही है। जैसे ही अपने घर पे पहुंची, जैसे ही अपने दरवाजे पे पहुंची, अब उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो बच्ची को क्या देखा कि बच्ची खाना भी लाई है और चादर भी लेके आई है। बच्ची ने कहा, मेरी माँ तूने सच कहा था, जहां पूरी दुनिया गिरा देती है मुस्तफा उसको उठा लिया करते हैं, जब पूरी दुनिया ललकार देती है तो मुस्तफा अपने कलेजे से लगा लेते हैं। किसी के दरवाजे से मना हो जाए लेकिन मुस्तफा के दरवाजे से मना नहीं होती है। ऐ मेरी माँ तूने सच कहा था कि मुस्तफा बहुत बड़ा सखी है, मुस्तफा बहुत बड़े सखावत के दरिया है, उनसे बड़ा सखी तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे खाना तो दिया है लेकिन एक जुमला और बोला है, बेटी अगर तू किसी और की है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बल्कि जब तक तू जिंदा रहे तो किसी और दरवाजे पे खाना तलब करने मत जाना, बल्कि मेरे ही दरवाजे पे आ जाना, जब जब भी आएगी तुझे खाना दिया जाएगा। ये कहा था अपनी माँ से तो माँ ने कहा था, मेरे लाल तूने देख लिया मुस्तफा का अखलाक, तूने देख ली मुस्तफा की आदत करीमाना। ये मुस्तफा का पावर है कि अगर खैर जाता है मुस्तफा तब भी अता करते हैं, अगर अपना जाता है मुस्तफा तब भी अता करते हैं, अगर खैर जाता है मुस्तफा तब भी हिबा करते हुए नजर आते हैं। अब बेटी खाना तो दे देती है लेकिन अपने नन्हे नन्हे हाथों से चादर खोल के अपनी माँ के सर पे उड़ाना चाहती है, लेकिन माँ कहती है, मेरे लाल मैं इस चादर को नहीं ओढ़ूंगी। जब इतना कहा माँ ने तो बेटी कहती है, मेरी माँ अरे ये बहुत शान वाली चादर है जो
मुस्तफा ने तुझे अता की है और तू इसको ओढ़ने से इनकार कर रही है। तो बेटी से माँ कहती है मेरे लाल मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये चादर पाक है, मैं नापाक हूँ। ये चादर बहुत शान वाली है, मेरी औकात कुछ नहीं है। इस चादर को मैं ऐसे नहीं ओढ़ूंगी। पहले मैं अपने बदन को पाक करूंगी, पहले मैं अपने दिल को साफ करूंगी, पहले मैं अपने दिल की संग को दूर करूंगी, उसके बाद में इस चादर को ओढ़ूंगी। तो बेटी कहती है मेरी माँ वो चादर दिल की जंग दूर कैसे होगी, तेरा दिल साफ कैसे होगा? अरे हमारा बदन तो पानी से साफ होता है, हमारे बदन की गंदगी तो पानी से साफ होती है, लेकिन दिल की गंदगी कैसे दूर होगी, दिल की जंग कैसे दूर होगी? तो माँ कहती है मेरे लाल दिल की गंदगी किसी और चीज से दूर नहीं होगी, बल्कि पहले मैं कलमा पढ़ के मुस्तफा के इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, उसके बाद मैं मुस्तफा की मुजम्मिल वाली चादर ओढ़ूंगी। अब माँ ने अपने हाथों में चादर ली है तो अपने घर के अंदर कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि मदीने के मैदान में निकल जाती है माँ, मदीने की गलियों में निकल जाती है और बाबा के दहल बाबा के दुहल इस बात का ऐलान कर देती है मदीने वालों का बाहर रहना, मैं मुस्तफा का कलमा इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि मुझे मुस्तफा ने चादर अता कर दी है, बल्कि मैं मुस्तफा का दीन इसलिए कबूल कर रही हूँ। अरे जो मुस्तफा दुनिया में रह के मेरी बेटी यतीम को खाना खिला सकता है और मुझ जैसी बेवा को ओढ़ने के लिए चादर अता कर सकता है, तो वो मुस्तफा कल मैदान महशर में अपने गुलामों को जन्नत भी अता कर सकता है। तभी तो के भाई अल्लामा हसन पुकारते हैं फूटा ही करे सदर कयामत के सिपाही, तो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, तो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, जिसे बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। भाई बा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद में उसी के ताल्लुक से 10 मिनट गुफ्तगू करके अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बहुत बड़ा शेर है, किसी ने कहा था बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मैंने माँ का जिक्र इसलिए यहाँ पर किया है, आप उवैस करनी का नाम जानते होंगे, जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हुए हो। हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने अपनी माँ से इस कदर प्यार किया था कि माँ की ममता की खातिर, माँ की मोहब्बत की खातिर मुस्तफा का दीदार नहीं किया था। आप इश्क वालों की अगर हिस्ट्री खोल के देखेंगे, अगर आप आशिकों की किताब को जब उलट पलट करेंगे, तो सबसे बड़ा नाम अगर किसी आशिक सादिक का नजर आएगा तो किसी और का नहीं, बल्कि हजरत ख्वाजा उवैस करनी का आपको नजर आएगा। कहीं पे हजरत बिलाल हबशी का आपको नजर आएगा, लेकिन एक बहुत बड़े आशिक सादिक का नाम है हजरत ख्वाजा उवैस करनी। अब हजरत ख्वाजा उवैस करनी की बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आप सब जानते हो मेरे मुस्तफा की महफिल सजी हुई है, जैसे आज सैदपुर के अंदर मुस्तफा की महफिल सजी है, इसी तरीके से मुस्तफा के दौर में मुस्तफा की महफिल सजी हुई थी। साहिबो जरा सुनिए तो सही, मेरे मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा के दरमियान बैठे हुए थे। मेरे आका अचानक कहते हैं मेरे सहाबा सुनो सुनो, अरे तुम नहीं जानते हो मेरा एक दीवाना है, मेरा एक चाहने वाला है, मेरा एक चाहने वाला है, मतवाला है, फरजाना है, जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह तो आपसे कितनी मोहब्बत करता है? मुस्तफा कहते हैं मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसके बाल बिखरे हुए रहते हैं, उसके बदन पे लिबास फटा हुआ रहता है, उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें रहती हैं, लेकिन उसका मकाम अल्लाह के हुजूर इतना बुलंद है, उसकी शान परवरदिगार आलम की बारगाह में इतनी बुलंद है, अगर किसी के लिए वो हाथ उठा के दुआ कर देता है तो परवरदिगार आलम कभी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। सहाबा कहते हैं मेरे आका फिर आपके उस आशिक का नाम क्या है, वो रहता कहाँ पे है? तो मुस्तफा कहते हैं मेरे सहाबा सुनो, वो रहता कर्न के अंदर है, नाम उवैस है। मेरे आका ने जब इतना कहा तो सहाबा समझ गए वो उवैस है जिसकी शान इतनी बुलंद है। मेरे आका ने जब सहाबा के सामने हजरत उवैस की शान को बयान कर दिया, अल मुख्तसर ये बात आपको सुनाने लगा हूँ। एक मर्तबे रात के सन्नाटे में हजरत उवैस अपनी माँ के कदमों को दबा रहे थे, अपने माँ के कदमों की दबा रहे थे, अपनी माँ की खिदमत कर रहे थे। हजरत उवैस के दिल में एकदम
एकदम मुस्तफा का इश्क अंगड़ाई लेता है, इश्क एकदम मुस्तफा का इश्क जैसे कि उभरता है हजरत उवैस के दिल में, तो अचानक मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में हजरत ख्वाजा उवैस करनी की आंख से आंसू जमीन पे गिरने लगे। तो जमीन पे नहीं गिरे, जैसे कि आंसू हजरत उवैस की आंख से निकले थे तो उनकी माँ के तलवों से टच हो गए। अरे आज डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़ के कहता है कि तुम्हें बुखार है या खांसी है, लेकिन वो आला जब लगाता है तो चेक करके बताता है कि हमें कौन सी बीमारी है। सबसे बड़ी डॉक्टर अगर मेरी नजर में कोई है तो माँ है। अपने बच्चे को चेहरा देखती है, कोई आला नहीं लगाती है, बल्कि चेहरा देख के पहचान लेती है बच्चे को कौन सी परेशानी है। वो चेहरा देख के समझ जाती है बच्चे को प्यास की तलब है या दूध की तलब है। वो चेहरा देख के समझ जाती है बच्चे को खाना चाहिए या कुछ और चाहिए। सबसे बड़ी मेरी नजर में अगर कोई डॉक्टर है तो बच्चे के लिए माँ है। जब माँ के तलबों से हजरत उवैस के आंसू टच हुए तो माँ ने कहा था, मेरे लाल तुझे आज कौन सी मोहब्बत ने रुलाया है, तुझे आज किस परेशानी ने रुलाया है, तेरे आंसू मेरे तलबों से कैसे टच हुए। जब उवैस से इतना पूछा था नाबीना माँ ने, एक बात और सुनिएगा, उनकी माँ को दिखता नहीं था, वो नाबीना हो चुकी थी, उनकी आंखों से रोशनी जाती रही थी, लेकिन अपनी माँ से हजरत उवैस इतना प्यार करते थे, हजरत ख्वाजा उवैस करनी अपनी माँ से इतना प्यार करते थे कि हर वक्त माँ की खिदमत में रहा करते थे। अगर माँ को पानी की जरूरत होती थी तो माँ को कहना नहीं पड़ता था, उवैस पहले ही पेश कर दिया करते थे। अगर हजरत उवैस करनी की माँ को खाने की तलब लगती थी तो बेटे से नहीं कहती थी, बेटा खुद ही खाना पेश कर दिया करता था। जब बेटे की आंख से आंसू बहे थे तो माँ ने कहा था, मेरे लाल तुझे कौन सी परेशानी ने आज रुलाया है, तुझे कौन सी मुसीबत ने तुझे रुलाया है। जब एक माँ ने इतना कहा था अपने शहजादे अपने लाडले चहीते बेटे थे तो हजरत ख्वाजा उवैस करनी सारों कतार रोने लगे और रो के कहते हैं, मेरी माँ मुझे किसी और ने नहीं रुलाया गए, बल्कि आज मेरे यार की मोहब्बत ने मुझे रुला दिया गया। हजरत उवैस कहते हैं, मेरी माँ आज मुझे उस मोहम्मद की मोहब्बत ने रुलाया गया जिससे मैं सुबह शाम प्यार करता हूँ, जिससे रात दिन प्यार करता हूँ। माँ कहती है, मेरे लाल तू कहना क्या चाहता है। हजरत ख्वाजा उवैस करनी कहते हैं, माँ मैं मुस्तफ़ा को देखने के लिए जाना चाहता हूँ, मेरी माँ मुस्तफ़ा के दीदार के लिए जाना चाहता हूँ। तो बेटे से माँ कहती है, ऐ मेरे लाल तू जानता है तेरे अलावा मेरा कोई बज़ाहिर सहारा नहीं है। अगर मुझे पानी की तलब होती है तो तू अता करता है, अगर मुझे खाने की तलब होती है तो तू देता है। बेटा अगर तू चला जाएगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन बेटा कहता है, मेरी माँ मुझे मुस्तफ़ा को देखने की मेरे दिल में अंगड़ाई, मेरा दिल अंगड़ाई ले रहा है। जब बेटे ने ज्यादा कहा तो माँ कहती है, मेरे लाल फिर तू सुबह का सूरज निकले तो मुस्तफा से मिलने के लिए चले जाना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब शाम का सूरज ढले तो उससे पहले मेरे पास आ जाना। माँ से जब माँ ने इतना कहा तो हजरत उवैस करनी माँ की मोहब्बत मेरे माँ की शर्त को कबूल कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, मदीने जाने वाला काफिला मदीने को जा रहा था कर्ब से, हजरत ख्वाजा उवैस करनी भी उसी काफिले में शरीक हो गए। और जैसे ही शरीक हुए, अब रास्ते में गर्मी की शिद्दत की वजह से, गर्मी की सख्ती की वजह से काफिले ने पड़ाव डाल दिया, लेकिन हजरत ख्वाजा उवैस करनी के पास में वक्त नहीं था। हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने वहीं से दौड़ लगा दी मदीने की सरहदों की तरफ, मदीने की सरहदों के करीब हो गए। मुख्तसर करके इख्तिसार के साथ आप तक पहुंच रहा हूं। हजरत ख्वाजा उवैस करनी मदीने की सरहदों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात होती है। बच्चों से कहते हैं, बच्चों जरा ये तो बताओ, अरे तुम्हारी शान कितनी बुलंद है, तुम उस मदीने में रहते हो जिस मदीने में मेरा महबूब रहा करता है, तुम उस मदीने में सांसें रहते हो जिस मदीने में मेरे मुस्तफा सांसें लिया करते हैं। ऐ बच्चों तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है, ऐ बच्चों तुम्हारी शान बहुत बुलंद है। ये इश्क बोल रहा था ख्वाजा उवैस करनी का, और जब इश्क बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने बच्चों से सवाल किया, ऐ बच्चों जरा बताओ तो सही मेरे मुस्तफा मुझे कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने बताया मस्जिद नबवी मिलेंगे। हजरत ख्वाजा उवैस करनी मस्जिद नबवी में चले जाते हैं, और मस्जिद नबवी में जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं मुस्तफा वहां नहीं है। अब किसी ने बताया कि मुस्तफा आप चले जाओ हुजरे आयशा में आपको मुस्तफा जाने रहमत मिल जाएंगे। हजरत ख्वाजा उवैस करनी चले जाते हैं वहां पर। जैसे ही पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन है जिसने दरवाजे को हिलाया है। तो ख्वाजा उवैस करनी कहते हैं, आज कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा का दीवाना मुस्तफा से मिलने के लिए आया हुआ है, मुस्तफा का चाहने वाला मुस्तफा से मिलने के लिए आया हुआ है, मुस्तफा का आशिक मुस्तफा से मिलने के लिए आया हुआ है। जब इतना कहा था किसी दीवाने ने, तो हजरत आयशा पलट के जवाब देती है, दीवाने सुन ले, तेरे आने में ताखीर हो गई, मुस्तफा अभी निकल गए हैं हुजरे से, तेरे आने में देर हो गई, मुस्तफा तो जा
چکے ہیں. جب اتنا کہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نشیمن اور خرمن پہ بجلی گر گئی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے کسی پیاسے کی بالٹی کنویں پہ کھڑے ہو کے زمین پہ گر گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری پوری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ کسی نے چھین لی ہے. خواجہ اویس کرنی پریشان ہو کے کہتے ہیں حضرت عائشہ سن لو, امی عائشہ سن لو, مصطفیٰ جا چکے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ جہاں بیٹھتے ہیں اسی جگہ کا مجھے دیدار کرا دو. مصطفیٰ جس مسند کی ٹیک لگاتے ہیں اسی مسند کو مجھے دکھا دو. حضرت عائشہ دروازے کو کھول دیتی ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی اندر تشریف لے جاتے ہیں. اب حضرت عائشہ پردے کی آڑ میں ہو جاتی ہے اور حضرت خواجہ اویس کرنی اپنے مصطفیٰ کی کبھی مسند کو چومتے ہیں کبھی زمین کو چومتے ہیں. اس طریقے سے مسند کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں جیسے کسی ماں اپنے بچے کو لگاتی ہے, جیسے 6 مہینے کے بچے کو ماں اپنے کلیجے سے چپکاتی ہے. اسی طریقے سے ان کے ستونوں کو اپنے کلیجے سے لگا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, در و دیوار کو چومتے جا رہے ہیں. جب یہ ساری باتیں حضرت عائشہ نے دیکھا تو حضرت عائشہ کہتی ہے دیوانے اگر مصطفیٰ سے اتنا پیار ہے تو رک کیوں نہیں جاتا, دیدار کر کے ہی جانا. تو دیوانہ کہتا ہے اے امی عائشہ سن لو, میرا دل تو چاہتا ہے پوری زندگی مصطفیٰ کی تحلیل پہ اپنی ختم کر دوں, لیکن وہاں پہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں, میری مجبوری ہے, میں یہاں نہیں رک سکتا. جب اتنا کہہ کے اور مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانہ حضرت خواجہ اویس کرنی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں جب مصطفیٰ آ جائیں تو میرا سلام پیش کر دینا, اور یہ کہہ کے وہاں سے اپنی ماں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی اویس نکلے تو مصطفیٰ آ گئے. مصطفیٰ نے خوشبو سے پہچان لیا آج میرا دیوانہ آیا ہوا تھا, لیکن حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں میری شریک حیات عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ کون آیا تھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دیوانہ تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, دیوانہ تمہارا چاہنے والا تھا جس کے بدن پہ پھٹا ہوا لباس تھا, تم نہیں ملے تو تمہاری مسند کو ایسے اپنے سینے سے لگا رہا تھا, آنسو زمین پہ ٹپ ٹپ گرتے جاتے تھے, مسند کو چومتا جاتا تھا. تو میرے آقا برجستہ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ کوئی اور نہیں, میں مجھ سے چاہنے والا, مجھ سے محبت کرنے والا میرا محبوب اویس کرنی تھا جو کرن میں رہتا گئے. جب اتنا کہا اب ادھر پہنچ جاتے ہیں خواجہ اویس کرنی اپنی ماں کے پاس میں. ماں نے جیسے کہ بیٹے کی آہٹ کو سنا تو ماں کہتی ہے میرے لال اب تو تو مصطفیٰ کو دیکھ کے آیا ہے, اب تو تیرے دل کو سکون پہنچ گیا ہوگا, اب تو تو مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا ہے, اب تو تیرے دل کو تسکین پہنچ گئی ہوگی. میرے لال اب تو بتا دے تیرا محبوب چلتا ہے تو کیسا لگتا ہے, میرے لال بتا دے تیرا محبوب اٹھتا ہے تو کیسا لگتا ہے, میرے لال ذرا بتا دے تیرے محبوب کی رفتار اور گفتار کہتی ہے. جب اتنا کہا تھا ماں نے تو اویس کرنی کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے. اویس کرنی کہتے ہیں میری ماں میں جب پہنچا تھا تو مصطفیٰ حجرے سے نکل چکے تھے, میں دیکھ نہیں پایا مصطفیٰ کو. ماں کہتی ہے میرے لال جب وہاں تک پہنچ گیا تھا تو دیکھ کر ہی آتا. بیٹا کہتا ہے میری ماں اگر میں مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے وہاں رکتا تو تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ خلاف ہو جاتا, میں تیرے وعدے کو پامال نہیں کرنا چاہتا تھا. جب اتنا کہا تھا اویس کرنی نے تو اویس کرنی کی ماں اپنے لال کو کلیجے سے لگا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا پروردگار جس میرے بیٹے نے میری محبت میں اپنے محبوب کو دیکھنے کی قربانی پیش کر دی, مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر پایا میری محبت کے بدلے میں, اے پروردگار عالم تو اس کی شان اتنی بلند کر دے پوری دنیا تو اویس کی بات کرے اور مصطفیٰ پوری دنیا تو مصطفیٰ کی بات کرے اور مصطفیٰ میرے اویس کی بات کرے. اللہ 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 اللہ. بات سچ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے درمیان حضرت اویس کا ذکر کیا کرتے ہیں. حضرت موجود ہیں, میں نے بتقاضۂ بشریت جو بول دیا, اگر اس میں میرے بولنے میں کسی طریقے کی غلطی خامی کوتاہی لغزش اگر ہو گئی ہو ادباً احتراماً تو ان تمام علماء اکرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.